Welcome again, dear students, to class of 8th mathematics. Dear students, हम पिछले दिनों से पढ़ रहे हैं algebraic expressions and algebraic identities. And on the previous day, we learned what an identity is. Identities क्या है, किस तरह बनती हैं और हम इसका एप्लीकेशन किस तरह करते हैं, हमारे क्वेश्चंस पर हम किस तरह सॉल्यूशंस पर अराइव करते हैं. कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, unless and until you have understood it properly. We have to visualize it. एक ब्रेन में एक विजुअलाइजेशन होती है कि भाई ये कंपोनेंट्स है, ये टर्म्स है, इस तरह के एरियाज कवर करते हैं. Then only you have got to understand it. Be ready to visualize it. Let us go. We have an algebraic identity. It is x plus a multiplied by x plus b equals x square multiply a plus b into x plus a multiplied by b. Dear students, before visualizing it, before coming to this identity, let us recap what we learned yesterday. For understanding an identity, we considered, excuse me, I have been facing some requests from students to join in. Please bear with me for these pauses. We have considered an equality a plus 1, a plus 2, ये हमने ली थी a square plus 3a plus 2. If you remember, हमने इनका LHS और RHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था 10. आप देख सकते हैं हमने 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अराइव हुए at the result of 132. It is 132 on left hand side and it is 132 on the right hand side. हमने इक्वालिटी ले ली. हमने इस इक्वालिटी में वेरिएबल का वैल्यू दिया 10 और we arrived at the value 132. The LHS is value to 132, the RHS is value to 132. Again, we took the same equality, same example. अब हमने इसका वैल्यू चेंज करके -5 कर दिया. ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में -5 वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट किया, हमें मिला आंसर 12 and we arrived at conclusion. And what was the conclusion? हमने पाया कि कुछ इक्वालिटीज ऐसी हैं जहां हम वेरिएबल को कोई वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, एवरी टाइम आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल. Such an equality is called identity. Now, let us visualize this x plus 1 and x plus 2. जो हमने mathematically, you see, जो हमने इधर x plus 1 and x plus 2, ठीक, ये हमने ली थी एक equality, हमने इसमें values दिए थे, we got some conclusions. Let us take the same equality. And visualize it. We can take x plus 1 from this side of, let us say this is a piece of paper. You can make a paper cutting. You can draw these on graph papers or plain papers. We have a binomial, it is x plus 1. We have a binomial, it is x plus 2. ये मार्क जो है यहां तक हम कंसिडर करते हैं क्वांटिटी या इसकी लेंथ x है, तो सेम लेंथ यहां से भी है. So here for this piece of length it is x and this piece of length is same as this side, it is x. Now we have here x plus 1, तो ये side जो है it is actually x plus 1. ठीक है, x and plus 1 means x and 1 amounts to x plus 1. And यहां से जो है
ये हमने ये सिंगल यूनिट का वन, अगर इधर से लेट अस से इट इज 1 सेंटीमीटर, लेट अस से इट इज 1 इंच, आपने यहां से इसका डबल लिया, दैट इज 2 इंच, ठीक है। आपने इधर से x प्लस 2 ये लेंथ ले ली, आपने इधर से ये विड्थ ले ली x प्लस 1, हमने इधर ये रूलर लेकर ये ड्रॉ की ये लाइंस, तो यहां हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज वी हैव द फोर पीसेस ऑफ पेपर, आई सी, अगर ये पेपर कटिंग कर देंगे तो इन पेपर पीसेस में ये वाला पोर्शन जो है जिसकी लेंथ x और जिसकी ब्रेड्थ x है, इसका एरिया बनेगा x स्क्वायर। यहां जिसकी लेंथ 2 थी और जिसकी विड्थ x थी, इसका एरिया 2x बनेगा। एक्सक्यूज मी वंस अगेन, और यहां जो we have one more piece, yahan we have the one dimension as 1 unit, and here let us say this length is x, so the area is 1 times x, length multiplied by breadth, and we have one more piece of paper cut out of this piece. It is इसका एक डायमेंशन 1 यूनिट है और दूसरा डायमेंशन 2 यूनिट्स है, इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर था, इसकी लेंथ हमने ले ली x प्लस 1, इसकी ब्रेड्थ हमने ले ली x प्लस 2, ठीक। x कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, 1 मींस आप 1 सेंटीमीटर, 1 इंच या सिंगल यूनिट आप ले सकते हैं, कोई यूनिट आप 2 सेंटीमीटर का यूनिट बना सकते हैं या 3 सेंटीमीटर का यूनिट बना सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड में आपको क्या लेना है, आपने इधर उसका डबल लेना है। इस साइड में आपको ये 2 जहां है ये है डबल, अच्छा किस साइड का डबल है, ये है ये वाले साइड का डबल, ठीक। इसको आप कट कर सकते हैं, आपके 4 पीसेस हासिल होंगे और जिनका एरिया क्या होगा, नंबर 1 थिंग यू विल बी हैविंग x स्क्वायर, नंबर 2 यू विल बी हैविंग 2x, नंबर 3 you will be having 1x, and ultimately you will be having 1 multiplied by 2, मतलब 1 inch by 2 inch या 1 centimeter by 2 centimeter, or generally we say 1 units multiplied by 2 units. Now we have an identity here, it is x plus a and x plus b. अब देखिए प्रीवियस जो हमने ले ली, इट वाज x plus 1 and x plus 2. We have x but we have here constants. अगर 1 और 2 के बदले हमने इधर a कंसिडर किया तो ये कैसे हम विजुअलाइज करेंगे? We have x plus a and x plus b. यहां ये लेंथ x है, सेम हमने यहां से ले ली लेंथ x, तो दिस ये पोर्शन जो है we have taken this portion as a, and this portion is length b. a and b मतलब a and b सेम नहीं होना चाहिए, a is one quantity and b is another quantity. As in our first example, we have taken x plus 1 and x plus 2. Here we have x plus a and x plus b, one quantity and another quantity, not the same quantities. अब देखिए ये लेंथ अगर x है तो यहां ये लेंथ भी x है, इसी तरह ये वाली लेंथ जो है यहां से ये भी x है। तो अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, हम यहां आप इसका
कट मार सकते हैं पेपर पर, आप ये बना सकते हैं। वी हैव अनदर लाइन हियर, आप इसको कट कर सकते हैं। आपकी 4 पेपर कटिंग्स आपके साथ होंगी। इनका एरिया क्या होगा? यू सी दिस पीस हैविंग लेंथ x and having breadth x, it will be x square. You have here length x and breadth a, so the area will be ax, जैसा कि इधर दिखाया गया है, या xa. We have length b and width x, so the area will be here bx. We have here length b and width a, so the area will be, so we can cut this piece of paper after identifying the lengths and breadths. We can cut these into 4 pieces, and what we get, let's write here, we get x square, we get xa, we get xb and ab. and हम ये लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं ऑन द लेफ्ट साइड, सो हम लिख सकते हैं x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b. ये जब हम सॉल्व करते हैं तब क्या बनता है, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? फर्स्ट थिंग we are having x square, then we have xa, then we have xb, and then we have ab. For these two terms, x being common, आप इसका x common यहां लिख सकते हैं. We can write here a plus b multiplied by x plus ab. So यही यहां जो है हमारे पास आइडेंटिटी ऊपर जो लिखी हुई है, x square plus a plus b multiplied by x plus ab. So x plus a, x plus b actually length and breadth है, ठीक है. इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, और इसकी जो है हमारे पास टेंजिबल मतलब हमारे हाथ में होगा. ये क्या होगा? एक x स्क्वायर होगा और a प्लस बी टाइम्स x होगा और ab होगा. ये कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. दिस इज नथिंग एन एब्स्ट्रैक्ट. आप पेपर लीजिए, कट कीजिए, आपके हाथ में है ये पेपर कटिंग्स. नाउ व्हाट डू वी हैव? हमने x प्लस a, x प्लस 2 लिया, सो वी गॉट x स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 प्लस 2, यानी कि ये टर्म, ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो अगर हमने x प्लस a एंड x प्लस b लिया, ठीक है, इन द सेम वे वी हैड x स्क्वायर और a प्लस b, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनका सम मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ab. ठीक है, आइडेंटिटी इसी तरह बनी है, यही आइडेंटिटी है. How can we apply this identity on our question? Let us see exercise 9.5, question number 2. Let us solve it. We have here part 1. It is x plus 3 and x plus 7. और हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? हम इधर टॉप पर लिखते हैं, it was x plus a multiplied by x plus b. अगर ये पैटर्न के बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अगर x प्लस a और x प्लस b, मतलब यहां फर्स्ट टर्म और यहां फर्स्ट टर्म सेम होगी, एज हियर x एंड x, हियर 4x एंड 4x, हियर 2x एंड 2x, हियर xyz एंड xyz. अब उसके बाद a एंड b, मतलब यहां अब कोई सेकंड क्वांटिटी, x के बगैर कोई और क्वांटिटी, फिर यहां कोई तीसरी क्वांटिटी. We have here 3 and 7, we have here -5 and -1, we have here plus 5y, here 3y, we have here 4 and 2. जैसा कि मैंने विजुअलाइजेशन के वक्त कहा कि x ठीक है, but a and b should be different quantities, not the same quantities. ठीक है,
सेम क्वांटिटीज वाली आइडेंटिटी एक अलग आइडेंटिटी है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. सो इफ देयर इज x प्लस एंड x प्लस b, यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ab. तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरह लिख सकते हैं? x प्लस 3 एंड x प्लस 7 it equals, ठीक है, दिस टर्म स्क्वायर. हमने लिखना है ना x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर. उसके बाद लिखना है हमें प्लस एज पर अवर आइडेंटिटी. फिर a प्लस b, यहां a है 3, यहां b है 7, इट इज प्लस 3 एंड प्लस 7. आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना, प्लस नहीं लिखा जाता. मैं इधर लिख रहा हूं प्लस 3 एंड प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x. x मतलब ये वाली क्वांटिटी, दैट इज x here, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b, दैट इज प्लस 3 एंड प्लस 7, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 7, एंड इट इक्वल्स x स्क्वायर प्लस, यू सी this is this is to be written like this. इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, बट वी हैव प्लस साइन हियर. दिस इज प्लस 3 प्लस 7, ठीक है. 3 प्लस 7 इज 10, इट इज 10 टाइम्स x प्लस, यहां मल्टीप्लाई है, यहां याद रखिएगा, इट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. 3 7 इज 21. So this is the answer of the product of these two binomials using identity. Let us try one more. We have 4x plus 5, 4x plus 1. We have 4x plus 5, 4x plus 1. Let us solve it. 4x plus 5, 4x plus 1, it equals. अब यहां आइडेंटिटी आप एज रफ वर्क लिख सकते हैं, आप यहां भी लिख सकते हैं. आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b, इट इक्वल्स x स्क्वायर प्लस a plus b multiplied by x plus ab. So what is x here? ठीक है, चलिए हम इधर एक और तरीका लिखते हैं. मैं इधर एक और वे आउट दिखा रहा हूं. वी नो, आप इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस b इक्वल्स x स्क्वायर plus a plus b multiplied by x plus ab. Here x क्या है, a क्या है, तो b क्या है. यहां x क्या चीज है? इट इज 4x. x के बदले 4x है. अच्छा जी, a क्या है? इट इज प्लस 5. b क्या है? इट इज 1. Therefore 4x plus 5 multiplied by 4x plus 1, it equals. तो यहां क्या लिखना है? x square. What is x? It is 4x. This becomes the square of the x, जो x के बदले हमारे पास 4x है. Then we have plus a plus b, ठीक है, it is plus 5 plus 1, so we can write 5 plus 1 times x. You see, 5 plus 1 times x. And what is x? It is 4x. You have to write 4x here. Plus a multiplied by b. यहां आप a और b लिख सकते हैं. That is 5 multiplied by 1. Now we need to solve it. ठीक है. 4 square is 16. It is 16x square
This is 16x square plus 5 plus 1 is 6 multiplied by 4x plus 5 ones is 5. And you have and we get here 16x square plus 6 fours is 24x plus 5. And this is our answer. You see, हमने क्या किया, हमारे पास आइडेंटिटी थी 4x plus 5, 4x plus 1, हमने एक्सप्रेशन हमने आइडेंटिटी लिखी, हमने x को आइडेंटिफाई किया, ठीक, x आइडेंटिफाई करने के बाद हमने a आइडेंटिफाई किया, हमने b आइडेंटिफाई किया और हमने इस आइडेंटिटी को अप्लाई किया, ठीक है। तो हमने लिखा 4x plus 5 and 4x plus 1 it equals 4x square, that is x square plus a plus b times x plus ab, ठीक है। मैं फिर से इधर लिख रहा हूं, यहां हमारे पास क्या था, it was this term was x, this term was a, this term was b, this was x, this was a and this b. हमने इसको सॉल्व किया and we got this. I hope you can apply it on the other parts as well. आप इसको ट्राई कीजिएगा, जहां डिफिकल्टी है वहां मुझे बताइएगा. In case you find difficulty, hesitate नहीं करना है, आपको बताना है. You can tell any kind of difficulty faced with. Dear students, let's recap here once again. We have an algebraic identity, it is x plus a and x plus b, that is x square plus a plus b x plus ab. इसको ये क्या आइडेंटिटी है, इसकी विजुअलाइजेशन क्या है, हम इसको देखेंगे. okay? तो हमने पहले रिकैप किया, हमने एक्सप्रेशन इक्वालिटी हमने कंसिडर की थी परसों, हमने वो देखा कि हमने वेरिएबल वैल्यू जो है a का 10 लिया, वी गॉट LHS इक्वल्स RHS. हमने a का वैल्यू -5 चेंज कर दिया, वी गॉट 12, ठीक है. और हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कुछ इक्वालिटीज ऐसी हैं जहां हम वैल्यू जो लेते हैं वेरिएबल का, कोई भी वैल्यू वेरिएबल में दीजिए, LHS और RHS इक्वल बनेगा, दैट इज एन आइडेंटिटी. इन द सेम वे वी गॉट दिस आइडेंटिटी इक्वालिटी ना एक्सप्रेशन. सॉरी, इस एक्सप्रेशन को हमने विजुअलाइज किया, x plus 1 x plus 2 कैसे पेपर पर बनाकर इसकी कटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है. तो x कोई भी यूनिट है जो आपकी मर्जी है, it can be 5 centimeter, it can be 10 centimeter, it can be 7 centimeter, and 1 means single unit. अगर आपने ये सेंटीमीटर्स में लिया तो ये आपको 1 लेना है, अगर आपने ये 1 लिया तो ये 2 लेना है. इधर से आप इसकी कटिंग कीजिए, आपके पास 4 पीसेस ऑफ पेपर होंगे और जिनका एरिया जो है ये होगा. आप इसको फिर से देखिएगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. Then we have another expression, that is x plus a and x plus b. If we have x plus a and x plus b, इसको अगर पेपर कटिंग पर कर देंगे तो कैसे होगा, तो ये हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि इसकी कटिंग अगर होगी तो we will get, ठीक है, 1x square, 1xa, 1xb and 1ab, and that is the actual identity जो हम फिर अप्लाई करते हैं on the questions that are to be solved. ठीक है. हमने एक्सरसाइज 9.5 क्लास 8th की टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 2 पर अप्लाई किया. वी यूज्ड द आइडेंटिटी हियर, द बेटर वे इज हियर एंड पार्ट 2. और इसको आप देखिए, समझिए. इन केस यू फाइंड डिफिकल्टी, डोंट हेजिटेट, आस्क. अगर आप में से किसी को इस बारे में कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं. इज देयर एनी डाउट? No, sir. Any other student? Thanks for being here. Thanks for having patience, and I hope आप सीखेंगे कुछ, आप कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में बड़े मजे से कर पाएंगे, बड़ी इजीली से.